हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। जो आज हम चैप्टर करेंगे 23, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी ज़रूरी भी रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चैलेंज टू बी इंडियन डेमोक्रेसी। यू नो दैट व्हाट यू मीन टू डेमोक्रेसी? Democracy is the most important for any country. This chapter here challenges to be Indian democracy. But first topic arrive here, understanding of democracy. What is a democracy here and what are understanding you? Let's begin with the understanding the meaning of democracy and the condition that is essential for their successful functioning here. And this will be help us to be appreciate the challenge to the Indian democracy. And what is the challenge here of democracy? Is the most important. Let's see the picture. And what is this picture here? On your screen, there is a most important picture here. This girl thinking here, what is it exactly is the democracy? What is democracy here? This is the most important point here. The democracy is RTI, democracy in a society, democracy in elections, Indian government is democracy, democracy in human behavior. What is actually democracy? This is the most important things here. Or you know that your mind also thinks these questions here. The next topic is the most important here, meaning of democracy. Long back former president of United Nations States of America. The long back former president of United States of America, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln is said, democracy is a government of people, for the people, and by the people. Abraham Lincoln's totally clear in this word of democracy here. The democracy is a government of people, for the people, and the people. The term of democracy comes from a Greek word demokratium, which is a mean rule of the people. It was a coin from the two word demos, that mean a people, and kratos, which refer to the power. There is mean people as a power, and that is a democracy. The power rests with the people. You know that there is the most important defined here. A people's of power means power rests with the people, and this mean is based on the experience of their governments that existed in the sum of Greek city-state. Notably is Athens, and today also is democracy defined as a forms of government in which the supreme power is vested in their people and exercised by them directly to indirectly through a system of representation, usually involving to the periodic free election.
There is a periodic free election. This is important. When you examine the definition of democracy, as suggested above, you will find that most of those definitions define to democracy as a form of government which is run by the elected representatives. And this statement define democracy is a political context, but should be a democracy be a defined only in the political context. And does this concept not have a equal, if not a more, reliance in the social context or even the relations to be self in our daily life? This is important. We accept that democracy is reflected in this definition, political, social, or self. You have seen above that is a present as a democracy is just not a limit to be a political democracy. It means to more than a mere form to the government. It is a comprehensive from a democracy, mean or out to be a mean. A first year, a form of government, second, a type of state, and third, a pattern for a social system. And the designing of economical order, a way of the life and culture. And therefore, when we say that India is a democracy, we mean not only that is a political institution and the process the democratic, but also that Indian societies and every Indian citizen is a democratic reflecting and basis democratic's value of equality, liberties, fraternities, and secularism and justice in the social environment and individual behavior. The next point is also important. It's still a condition of for a democracy. This is the most important. It's still a condition for democracy here. A system can be termed as a genius and the comprehensive democracy only when it is a fulfill both political and social economical aspect of peoples and participations and certifications. Let us identify those. And there may be two major categories here: political condition and social and economical conditions. The fulfillment of first leads to be political democracy and the second as a social democracy. Obviously, there is a first and foremost or a political condition of democracy. It is really that for a system to be a democratic, we must adopt a constitution and the law that vests supreme power in the people. The human rights and fundamental rights such as equality, liberties, and thought their experience, beliefs, movement, communication, association must be protected by the Constitution. The democratic system has to be have universal adult franchise as the basis of the electing representative at a various level of the government. Moreover, opportunity to the political participation of all the citizens not only in the election at a regular interval but also in the other except their political process have to be made available. And there has to be a responsible government in which the executives is answerable to be legislatures and the legislatures to be a people and justly there to be remain independent. Political institutions like a political parties and interest and pressure group. You know the association barriers and non-government organization here, pressure group. And must be a functioning for expressing a popular need, demands, and grievance. This is important. A democratic system is a strengthness if it is a maintenance and enlightened a public opinion. It is a various form through the free press and other communication process. Political democracy is thus one which incorporates all the above political traits. Can you think of the few more history of democracy, especially in the context of the idea discussed in a preview lesson? You may also be interested in the now there is a social and economical condition of democracy. A democratic system has to be ensure that the social development
is tuned with the democratic value and the norm, reflecting equality of social status and their opportunity to be development, social security, and social welfare. Citizens must be available opportunity to be universal and compulsory education. They must also be enabled to be utilized mean of economical development, and the fruit of economical development must reach all and especially to the poor and the deprived section of society. Social economical development of people strengthens social democracy. कहते हैं अगर इस बात पे अगर हम जोर दें कि किसी भी रूल रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए बहुत ही मेहनत और बहुत ही जो शक्ति बरतनी पड़ती है, लेकिन रूल रेगुलेशन को अगर तोड़ा जाए तो चंद सेकंडों में टूट जाती है। कहते हैं अगर भारत को अगर हम डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक देश बनाना है तो इसके लिए बहुत सी चुनौती है, और इन चुनौतियों से ही भारत जो है आगे लोकतंत्र हो सकता है। भारत देखा जाए तो लोकतांत्रिक राज्य ही है, देश ही है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र होना कई मायने में महत्वपूर्ण होता है और इसके समक्ष चुनौतियां भी उतनी ही होती है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है और इसको निपटान कैसे किया जा सकता है, और इसमें जो है प्रत्येक नागरिक की क्या भागीदारी होगी और हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस सारी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां के अंतर्गत जो चैप्टर है, सबसे पहले पॉइंट तो यही आता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र को समझना, आखिर लोकतंत्र होती क्या है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, सभी लोगों के अगर विचारधारा देखिएगा तो सबका विचारधारा अलग अलग होता है कोई भी टॉपिक पे, लेकिन कहते हैं सही बात वही होता है जो सार्थक होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। अब लोकतंत्र को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र को नहीं समझिएगा तब तक जो है आप कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाइएगा। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक कैसे है और आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। आइए हम लोकतंत्र के अर्थ एवं उनकी सब सफल कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करें, और इससे हमको जो है भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों को समझने में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि लोकतंत्र अगर आप समझ जाओगे तो लोकतंत्र की जो चुनौतियां होती है उसको समझना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। जैसे आपके मन में उठता है कि लोकतंत्र होता क्या है, वैसे ही इस पिक्चर में बनी इस बच्ची को जो है यही बात सता रहा है कि लोकतंत्र होता क्या है। क्या लोकतंत्र समाज को लोकतंत्र कहते हैं? क्या चुनाव को हम लोकतंत्र कहते हैं? या भारतीय सरकार को लोकतंत्र कहते हैं? यानी मानव व्यवहार को लोकतंत्र कहते हैं? या सूचना का अधिकार को हम जो है लोकतंत्र कहते हैं? इस बच्ची ने बहुत बात सोची, बहुत समझा। अब चलिए इस बच्ची को समझाने की कोशिश करें कि आखिर लोकतंत्र होता क्या है, वास्तविक लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो चलिए, अब देखिए हमारे समक्ष जो टॉपिक आया है लोकतंत्र का आशय। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि लोकतंत्र का आशय क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। बहुत पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता द्वारा सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया कि जनता की सरकार यानी जनता के द्वारा बनाया गया सरकार और जनता के लिए सरकार कार्य करे, यानी जनता के लिए सरकार, जनता द्वारा सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर हर जगह जो है जनता शब्द यूज़ किया गया है, लेकिन क्या वास्तविकता में ये बात सच है कि सरकार सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही कार्यरत होती है? रूल रेगुलेशन तो जितना मुझे पता है सारे रूल रेगुलेशन चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों सब आम व्यक्तियों पर ही थोपी जाती है। बड़े लोगों पर तो इसका असर ही नहीं देखने को मिलता है। तो जनरल सी बात है, हम ही आम व्यक्ति जो है एक जनता है और जनता के लिए सरकार बनाई जाती है। कहते हैं कुछ सरकार देश की भलाई चाहती है, कुछ जनता सरकार जो है जनता की जो है पीसते हैं। तो ये बहुत ही अलग बात आती है यहाँ पर। डेमोक्रेसी जो है शब्द ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिस से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, यानी जनता का शासन। और ये दो शब्द डेमोस जिसका अर्थ होता है जनता, ठीक है, और कटोस जिसका अर्थ होता है शक्ति, को मिलाकर बना है ये।
अंततः लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है। लोकतंत्र में शक्तियाँ जो होती है जनता के पास होती है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। मान लीजिए जनता अगर खड़ी हो जाती है सरकार के खिलाफ तो सरकार गिर जाती है। ये तो जनरल सी बात है, क्योंकि जनता के पास सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन आज जनता इन सब बातों को ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनको दो रोटी इकट्ठा करने में ही उनको बहुत समय लग जाता है, तो वो राजनीति की बातों में सोचते तक भी नहीं है। और ऐसा ही देखने को मिला है। कहते हैं भारत में बहुत से सरकार बनते हैं, बहुत से सरकारों ने तरह तरह के रूल रेगुलेशन बनाए, जनता को तरह तरह से परेशान किया, लेकिन जनता ने उप तक नहीं किया। जब इलेक्शन आती है तो इनके घरों तक ये पहुंचते हैं और इनसे जो है चुनाव में वोट करने के लिए कहते हैं और तरह तरह के वादे कर कर के लोगों को फंसाते हैं। चलिए, ये तो राजनीति की एक नीति होती है। नीतियों को तो कहते हैं बदलना संभव नहीं है। जर्नल सी बात है, नीतियों में यही होती है कि आप किसी भी व्यक्ति को कैसे आप फंसा लो, कैसे आप अपनी बातों में लगा लो, यही राजनीतिक होती है। और जो व्यक्ति उनके बातों और उनके जो है बहलावे में आ जाता है, उनके लालचों में आ जाता है, समझिए कि वो उनके चंगुल में फंस गया। ये हर क्षेत्र में देखने को मिला है। आज दुनिया में जहाँ भी चले जाइए ऐसा ही देखने को मिलता है, चाहे जीव जंतु हो चाहे इंसान हो, सब जगह ऐसे ही धूल चारों का उपयोग किया जाता है। कि धूत चाल जो है यही उपयोग करते हैं वो लोग। और क्या करते हैं, जनता को बहलाते फुसलाते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं और उन लालचों में जो जनता फंस जाती है और वो चले जाते हैं। लेकिन हमने एक बचपन में कहानी पढ़ा था, लालच बुरी बला है। ठीक है, जो लालच करता है वो जाल में फंसता है। और शायद आज इंडिया के लोग भी इसी तरह से फंसे हुए हैं, सरकार को कोसते रहते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई मैं क्या करूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनको समझ में आ जाना चाहिए कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है जो है जनता के पास सारी शक्तियां होती है। जनता चाहे तो किसी भी सरकार को बिगाड़ सकती है, किसी भी सरकार को उठा सकती है। लेकिन आज सिर्फ यही होता है कि इलेक्शन में वोट देते हैं और 5 साल के लिए जो है उनको राज करने देते हैं। उसके प्रति कोई भी जो है रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, चाहे वो सही भी हो चाहे गलत हो। चलिए, ये तो कहते हैं लोगों की अपनी सोच है। यह अर्थ ग्रीक शहर, राज्यों और विशेषता एथेंस में प्रचलित सरकारों के अनुभवों पर आधारित है एवं आज भी लोकतंत्र को सरकार के एक रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें स्वच्छ शक्तियाँ जनता के हाथों में ही होती है। सारी शक्तियाँ जनता के हाथ में हैं, लेकिन फिर भी जनता जो है बेकार रहती है। जिसमें लोग स्वतंत्र और सर्वाधिक चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति का सदैव प्रयोग करते हैं। यानी अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए इनके पास 2 तरह के प्रावधान होते हैं, एक प्रत्यक्ष होते हैं और एक अप्रत्यक्ष होते हैं। जब आप लोकतंत्र के विभिन्न परिभाषाओं का परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि लोकतंत्र निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा संघ सरकार का ही रूप है। यानी जो लोकतंत्र द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वही सरकार चलाते हैं और वही हम पे रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो ये लोकतंत्र का मतलब हुआ, जो आपको समझ में आ ही गया होगा। यह कथन लोकतंत्र के राजनीतिक संदर्भ में परिभाषित करता है, परंतु क्या लोकतंत्र को केवल राजनीतिक संदर्भ में ही परिभाषित किया जाना चाहिए? क्या लोकतंत्र को सिर्फ राजनीतिक संदर्भ में ही परिभाषित करने की विचार रखी गई है? क्या इस अवधारणा को सामाजिक संदर्भ अथवा हमारी दैनिक जिंदगी में राजनीतिक संदर्भ में अधिक नहीं तो बराबर की भी प्रासंगिकता नहीं है? ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहते हैं आम लोगों की ज़िंदगी में इसका इतना सारा असर देखने को मिलता है, तो क्या हम इसको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं कर सकते हैं? यह कथन लोकतंत्र के राजनीतिक संदर्भ में परिभाषित करता है, लेकिन क्या लोकतंत्र को केवल राजनीतिक संदर्भ में परिभाषित किया जाए? क्या लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक के लिए ही बनाई गई है? क्या इस अवधारणा में समाज संदर्भ में अथवा हमारे दैनिक जीवन में स्वयं में कोई प्रासंगिकता नहीं है? तो बहुत प्रश्न है, लेकिन प्रश्न का उत्तर जो है सरल है। कहते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का राज, लेकिन जनता कहाँ तक सार्थक है, इस बात का जो है परिभाषित करना संभव नहीं है। आपने देखा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र केवल राजनीतिक संदर्भ तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आज के वर्तमान समय में कहते हैं राजनीति केवल लोकतंत्र के संदर्भ में ही सीमित नहीं है, इसका अर्थ सरकार से रूप से कहीं अधिक है। व्यापक अर्थ में लोकतंत्र का अर्थ होना चाहिए सरकार का एक स्वरूप हो, राज्य का एक प्रकार हो, सामाजिक व्यवस्था का प्रतिरूप हो, आर्थिक व्यवस्था का नमूना हो और जीवन और संस्कृति का ढंग हो, तभी जाके लोकतंत्र जो है सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, तो इससे हमारा अभिप्राय हुआ है कि न केवल इसकी राजनीतिक संस्थाएं
प्रक्रिया और लोकतांत्रिक है? अतुल, इसका प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र है और अपने सामाजिक परिवेश और व्यक्तिगत व्यवहारों में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव और धर्मनिरपेक्षता और न्याय के आधारभूत लोकतांत्रिक मूल्य को प्रदर्शन करता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ इशारा किया गया है। समानता यानी सारे जो है जीव जंतुओं को सामान्य अधिकार देना, स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और भ्रातृभाव यानी जो है भाईचारे की भाव, यानी भारत एक है, सभी भाई बंधुओं की तरह रहते हैं, ये भावना हमें दिखाता है लोकतंत्र। धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर कोई धर्म किसी का नहीं है, सब भारत के निवासी हैं और ये भारत ही उनका धर्म है। चाहे किसी भी धर्म से वो बिलोंग करते हों, कहते हैं हम फूल अलग अलग हैं लेकिन है हम एक माला का ही, अगर एक माला में हम घुस जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें। आखिर लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? किसी भी व्यवस्था को केवल तभी वास्तविक एवं व्यापक लोकतंत्र कहा जा सकता है जब लोगों की भागीदारी एवं संतोष के राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक पहलुओं को पूरा करती हो। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोगों की भागीदारी हो और लोग संतोष हो कि उन्होंने जिस व्यक्ति को चुना है वो उनके लिए कार्य कर रहा है। ये नहीं कि जब आप कार्य कुछ करवाने जाओ तो वो आपको बहाने बनाए। तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है, लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसकी दो प्रमुख श्रेणी हो सकती है, एक तो होता है राजनीतिक शर्तें और दूसरा होता है सामाजिक और आर्थिक शर्तें क्या हो सकती है। पहली स्थिति की पूर्ति राजनीतिक लोकतंत्र और दूसरे की पूर्ति जो है सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में ले जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्ति जो है सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में जो है ले जाती है। स्वयं जो है स्पष्टता लोकतंत्र की राजनीतिक शर्तें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसी व्यवस्था को लोकतंत्र बनाने के लिए हमें ऐसे संविधान और कानून को अपनाना चाहिए जो लोगों में सर्वोच्च शक्ति निर्धारित करती हो और जो भारत में है। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार जैसे समानता, विचार और अभिव्यक्ति, जो विश्वास, भ्रमण एवं संचार की स्वतंत्रता की संविधान द्वारा रक्षा भी की जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारी अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संचार की स्वतंत्रता संविधान द्वारा रक्षा की जानी चाहिए जो भारत में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के सभी सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व चुनने का भी अधिकार होनी चाहिए। तो ये भी हमारे देश में है, यानी हमारा देश लोकतांत्रिक है। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल जो बड़े बड़े लोग सब हैं हमारे देश को लोकतांत्रिक न समझ के एकल तंत्र बना रहे हैं, जो कि सही नहीं है और आने वाला समय में इसका बहुत ही दुष्परिणाम देखने को हमें मिल सकता है। सार्वभौमिक व्यास मताधिकार होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब तो हमने पहले ही समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि सभी देशों में जो है सभी जगह मतदान करने की जो पद्धति है अलग अलग होती है और इसके अतिरिक्त सभी नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अवसर न केवल नियमित अंतराल के बाद चुनावों के तीन राजनीतिक क्रियाओं के अन्य पक्षों में भी उपलब्ध होना चाहिए और एक ऐसी उत्तरदायी सरकार की होनी चाहिए जिसमें कार्यपालिका विधायक पालिका के प्रति जवाबदेह हो, विधायिका जनता के प्रति जो है जवाबदेह हो तथा न्यायपालिका स्वतंत्र हो। राजनीतिक दलों एवं हित समूहों और दबाव समूहों, संगठनों और गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं को जन साधारण की आवश्यकताएं, मांग और शिकायत को प्रस्तुत करने के लिए क्रियाशील होना चाहिए। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसका त्रिपाण स्टडी सेंटर भी वकालत करता है कि सरकार वही है जो जनता की आवश्यकताओं को समझे, मांगे को समझे, शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए शिकायत होना चाहिए। आपने देखा होगा सरकार कई आते हैं, तरह तरह की बातें करते, तरह तरह के जो है शिकायत सुनने की अवधारणाएं करते हैं, कभी कभी दरबार लगाते हैं, लेकिन सारे रूल रेगुलेशन इनके कुछ काम नहीं आते हैं। कई सरकार तो इतनी महान है कि लोगों को जो है मोबाइल का भी प्रयोग करने की जो है नसीहत देती हैं, लेकिन देखा जाए तो इसका कोई वास्तविकता अर्थ में ये मजबूत लोकतंत्र करने की कोई भी साधन ये सही नहीं है। यदि स्वतंत्र प्रेस और अन्य संचार क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न रूपों में जागरूक जनता बनाए रखा जाए तो लोकतंत्र व्यवस्था अधिक मजबूत होती है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है स्वतंत्र प्रेस और संचार माध्यम को जो है स्वतंत्र रखने की आवश्यकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज हमारा प्रेस भी स्वतंत्र नहीं है। कहते हैं बड़े बड़े नेताओं के अंतर्गत ही प्रेस और न्यूज़ सारे चलते रहते हैं। कई जगह तो उनको इल्ज़ाम भी लगाई जाती है कि सिर्फ ये इस पार्टी का ही न्यूज़ चैनल है, कभी उस पार्टी का न्यूज़ चैनल है, क्योंकि वो खबरें ही उनके फेवर में दिखा रहे होती हैं। वो गलती भी करते हैं फिर भी उनके फेवर में ही जो न्यूज़ चल रहा होता है
और जो जिसका दुश्मन है वो दुश्मनी दिखा रहे हैं। तो न्यूज़ चैनल का जो यहाँ पर जो है आज जो है रवैया सही नहीं है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई न्यूज़ का अर्थ होता है कि सरकार को जो है आईना दिखाए, वास्तविकता को दिखाए, जिससे सरकार जो है अच्छी नीति जो है जनता के लिए बना सके। अब न्यूज़ का मतलब बदल रहा है, प्रेस का अर्थ बदल रहा है, तो इसका जो है हम कुछ भी नहीं कह सकते। अंततः राजनीति लोकतंत्र में उपयोग सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। क्या आप लोकतंत्र के लिए कुछ अन्य अधिक आवश्यक शर्तें विशेषगत पाठों में चर्चित विचारों को संदर्भ में सोच सकते हैं? तो ये सोचने वाला काम आपका है। सोचिए कि आखिर कैसा हो सकता है हमारा लोकतंत्र। आप लोकतंत्र की सामाजिक और आर्थिक शर्तों को जानने के लिए उत्सुक होंगे और किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था को सुनिश्चित करना होता है कि सामाजिक हैसियत और विकास के अवसरों की समानता, समाज सुरक्षा और भलाई लोकतंत्र मूल्य और नियमों के अनुरूप है। कहते हैं नागरिकों को सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। लेकिन शिक्षा पर मैं क्या विचारधारा रखूँ? शिक्षा तो आज बड़े लोगों के ही बन के रह गए हैं। आम गरीब बंदों को तो दूर दूर तक शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं दिखाई दे रहा है। आज का सरकार ने इतने अच्छे अच्छे रूल रेगुलेशन बना दिए हैं कि आम गरीब बच्चों के लिए शिक्षा जो है 100 किलोमीटर दूर हो गया, जिसका कोई उन तक पहुंच नहीं है। आज देखिए अमीर के बच्चे अमीरी वाले शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को कुछ नहीं समझ है, ना उनको इतना इंटेलिजेंसी है। इक्का दुक्का बच्चे अपने मेहनत करके आगे निकल जाते हैं, वो तो अलग ही बात है। लेकिन देखा जाए तो सरकार के दो रवैयों के कारण जो है आज शिक्षा का स्तर जो है बहुत गिर गया है। आज अवसर उनको मिल रहा है, कहते हैं जिनके पास धन है उन्हीं के पास शिक्षा है। अब ये बात कहिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। सरकार ने तो 8th क्लास तक बच्चों को सभी किताबें मुहैया करवा रखी है, ड्रेस दे रही है, मिड मील के खाने भोजन ग्रहण करवा रही है। अगर इनकी वास्तविकता देखा जाए तो कहीं तक कुछ भी सही नहीं है। खाने की बात किया जाए तो आज जो है अच्छे क्वालिटी का खाना नहीं दिया जाता। सरकार ने कभी इसका निरीक्षण किया है? संभवतः ही नहीं है कि सरकार ने इसका निरीक्षण किया हो। कहते हैं उनके जो खाने दिए जाते हैं उनमें नमक का तो दूर की बात है, मसाले तक भी नज़र नहीं आते हैं, और मसाले की बात तो दूर कीजिए, उसमें कुछ पोषण तत्व भी नज़र नहीं आते हैं। कहते हैं जितने भी कुछ होते हैं सब लोग अपने घर घर लेके चले जाते हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, और उनके लिए कुछ भी नहीं रह जाता, घटिया क्वालिटी रहती है। कभी सरकार ने इसका निरीक्षण नहीं किया। बात है किताब देने की, तो किताब आप तो जो दे रहे हो, क्या उसको स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को जो है इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं? मैं आपको पक्का वादा के साथ कह सकता हूँ, पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी मंत्री के बच्चे होंगे वो सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे या विदेश में पढ़ाई कर रहे होंगे। कभी आपने मंत्री के बच्चे से पूछा है या मंत्री जी से पूछा है कि आप अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजती हो? आप प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजती हो? आप सरकारी में क्यों नहीं भेजती हो? तो वो खुद भी मानते हैं कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई सही नहीं है। कई स्कूल आप देखिएगा वहाँ पर तो चैप्टर का एक पन्ना भी नहीं पलटते हैं वो लोग। बच्चे वहाँ पर जाते हैं, बच्चे जब टीचर नहीं आते, छुट्टी हो गया बच्चे आप चाहिए घर, आपका टीचर आज आए नहीं है। तो सोचिए क्या सरकारी स्कूल का ये दुर्दशा होनी चाहिए? सरकारी स्कूल देखने में बहुत सुंदर है, इसका कोई दो राय नहीं, लेकिन उनमें पढ़ाने वाला व्यक्ति भी तो सही होना चाहिए जो बच्चों को शिक्षित करे। मैं देखता हूँ कि बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं तक चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज होता है कुछ भी नहीं होता है। तो ये गलत है। सरकार सिर्फ जो है रूल रेगुलेशन बना के अपने आप को शाबाशी नहीं ले सकती। सरकार अगर रूल रेगुलेशन बनाती है तो उसको कड़ाई से जो है निर्वाह करे और सभी जगह जो है सख्ती से रूल रेगुलेशन को लागू करे। ये नहीं कि अपनी भाषण देने के लिए आप बच्चों को स्कूल में बुला लो, धूपों में खड़ा कर दो, ठीक है, ये सही नहीं है। आपके विचार वो सुनेंगे जब आप अच्छे कार्य कीजिएगा। कहते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं उसको तो बच्चा क्या जीव जंतु भी उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती आप बैठाइएगा तो क्या है इसका मतलब? तो ये सही नहीं है। अनिवार्य शिक्षा आपने अवसर बनाया है बच्चों के लिए, लेकिन आपने अपने रूल रेगुलेशन में कभी भी जो है नहीं ध्यान दिया। उन्होंने आर्थिक विकास नामों का उपयोग करने में सक्षम बनाना चाहिए और आर्थिक विकास के लाभ सब तक और विशेष रूप से गरीब तथा समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचने चाहिए और लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करना भी चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी
और ज़रूरी बात थी। अगर आपको ये बात समझ में आया, अगर त्रिपान स्टडी सेंटर के बातों से सहमत हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे जो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पे जो है सेव कीजिए। अगर सेव नहीं कीजिएगा तो जो है आपको पता ही है कि त्रिपान सेंटर 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जो रेड बटन आपके मोबाइल पे दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।